کا خیر مقدم ہے۔ محکمہ بجلی کی طرف سے بجلی فیس میں اضافے کو لے کر ترال میں کچھ وقت کے لیے ہڑتال رہی۔ صارفین نے محکمے کے خلاف نعرے بازی کی۔ صارفین نے ترال بالا میں آب گھر کے مقام پر جمع ہو کر محکمے کے خلاف احتجاج کیا۔ ترال بالا میں بیشتر دکانیں بھی بند رہیں۔ احتجاج کی کال سٹیزنز کونسل ترال اور ٹریڈرز فیڈریشن ترال نے دی تھی۔ واضح ہے کہ بجلی بلوں میں 200 سے 240 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بلیں صارفین کو ملی ہے، اس میں گورنمنٹ نے لوڈ انہانسمنٹ کر کے جو ہائیک کر دی ہے ان بلز میں۔ علاقہ ترال کے لوگ آپ کو 7 دن کا مہلت دے رہے ہیں۔ 7 دن کے اندر یہ بلیں واپس لی جائے اور اسی پرانی ٹیرف پہ بلیں اجرا کی جائے تاکہ لوگ راحت کا سانس لے لیں۔ ٹیرف تو چینج نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس ایکچولی لوڈ کا ہوتا ہے، جو کنزیومر کس حساب سے لوڈ کرے گا، کنزیوم کرے، اسی حساب سے اس کو ایز پر ٹیرف اس کو بل نکلتی ہے۔ باقی رہا ان کو میں یہ بھی وشواس دینا چاہتا ہوں، ہمارے جو ریسپیکٹڈ کنزیومر یہ جانتے ہیں کہ سرما میں بہت دقت ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے، ٹرانسفارم ڈیمیج ہوتے ہیں اور ہمارے لائنز گر جاتے ہیں، اوور لوڈنگ ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ہمیں کوآپریٹ کرے تاکہ پہاڑی ضلع رامبن میں بجلی محکمے کی مایوس کن کارکردگی سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچانک سے بجلی کی بلوں میں کیے گئے اضافے سے عام لوگ تو پریشان حال ہیں، مگر سماج کے غریب طبقے پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ گنود چبا علاقے میں ایک معذور شخص بجلی کا بل لے کر دفاتر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن اسے کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ صاحب سے اپیل یہ ہے کہ جو میرے بجلی کا کرایہ یہ مجھے معاف کیا جائے۔ سر میں دینے کے قابل نہیں ہوں، ایک ہینڈی کیپ آدمی ہوں تو میں چلنے کے قابل نہیں ہوں سر، تو یہ مجھے معاف ہونا چاہیے۔ تار پول پاور لگی ہے تو ہم تو پھر پیسے بھریں گے، تو اگر ہمیں تار پول پاور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے ان کے سٹاف نے ہمیں بل کیسے ڈال دی؟ سال سے لائٹ کرایہ برابر لے لیتے ہیں، کوئی لائٹ نہیں، پول نہیں، کچھ نہیں، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کبھی بارش میں کبھی تار گرے گی بچوں میں پڑے گی نیچے۔ 2 سال سے کوئی بھی لائٹ صحیح نہیں ہے۔ درختوں پہ لگی ہے تاریں ہمارے، نہ ہے کوئی انتظام پول کا، نہیں ہے کوئی تار کا، نہیں کوئی، نہ اسی طرح سے ہے، ہم در بدر ہے۔ تو ہماری اپیل یہی ہے جناب کہ یہ کٹ دے، ہمارے ہم نہیں رکھیں گے کوئی بجلی شجلی، نہ ہم دے سکیں گے۔ لائٹ چاہے صرف کھانے پینے کے لیے اور بستر کرنے کے لیے، اس کے بعد ہمیں لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت ہم کھانا پینا بناتے اس وقت لائٹ نہیں ہوتی، جب ہم سو جاتے ہیں تو اس وقت لائٹ صبح تک چلتے رہتے۔ اس لیے ہمارا متفق رائے سے موہڑا کورٹ کا یہی متفق رائے ہے کہ ہم بل نہیں دیں گے اور اپنا کنیکشن ڈسکنیکٹ کریں گے۔ اور بلیٹن میں بات کرتے ہیں ڈی ڈی سی انتخابات سے جڑی سرگرمیوں کی۔ بڑے شوق و ذوق سے لوگ آ رہے ہیں۔ مرکزی وزیر سینئر بی جے پی لیڈر مختار عباس نقوی نے کپواڑہ میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈی ڈی سی انتخابات میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی۔ ڈی ڈی سی الیکشن ہے، آزادی کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے اور بی جے پی یہاں کے لوگوں کے وشواس سے اس لیے کمپلیٹلی کانفیڈنٹ ہے کہ بی جے پی بہت اچھی طرح سے پرفارمنس کرے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی اس سے پہلے جو ہل کاؤنسل کا الیکشن لداخ میں ہوا 370 کے ایبولیشن کے بعد، وہاں بھارتیہ جنتا پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا اور وہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک طرح سے چیئرمین ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے کہا کہ ڈی ڈی سی انتخابات کا انعقاد دراصل کانگریس کے آنجانی لیڈر راجیو گاندھی کی دین ہے، جس کو اب یہاں پر عملا جا رہا ہے۔ انتخابات کے سلسلے میں اموہ ویری ناگ میں منعقدہ پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران میر نے کہا کہ ان انتخابات کے ذریعے یہاں کے لوگ سیاسی بدلاؤ کے متمنی ہیں، اس لیے لوگ ان انتخابات میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ کہ یہ جو ڈی ڈی سی کا چناؤ ہو رہا ہے، جو پنچایتی راج کا تیسرا مرحلہ ہے، اور یہ 3 مرحلے دینے والا سورگیہ راجیو گاندھی ہے 73rd امینڈمنٹ کے ذریعے، اور اسی کو آج یہاں پر امپلیمنٹ فلی طرح کرایا جا رہا ہے۔ دیکھ رہا ہوں ماحول
कि बहुत अच्छा है, लोग अपने नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं, अच्छे नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं और उन नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं उन प्लेटफार्म पर जो उनके और जो बड़े मसाइल पेंडिंग है उनकी वो बात रखे और उस बड़े प्लेटफार्म पर रखे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 200-225 सीटों पर लड़ रही है अकेली। मेरी अपील रहेगी लोगों को कि वो कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को कामयाब करें और कांग्रेस ही एक वाहिद नेशनल पार्टी जो सबको साथ लेकर चलेगी और जो यहाँ के दबे कुचले मसाइल है उनकी कांग्रेस पार्टी अक्कासी करेगी। डीडीसी और पंचायत इंतखाबात के हवाले से जिला कुलगाम में जबरदस्त सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। नौजवान और खवातीन भी इन इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उधर पीपल्स अलायंस के उम्मीदवारों ने कई जगहों से कागजात नामजदगी दाखिल तो किए, ताहम बाज़ जगहों पर इत्तेहाद का मनफी असर साफ जाहिर है। बीजेपी ने गुपकार इत्तेहाद को अवाम और मुल्क मुखालिफ करार दिया। पीडीपी, एनसी और कांग्रेस जैसी बड़ी सियासी पार्टियां अवाम से वोट डालने की अपील कर रहे हैं ताकि फरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी जाए। गैंग ने एक कैंडिडेट को मैंडेट दिया पीडीपी का, वहां नेशनल ने भी फार्म भर में, सीपीआईएम में भी, ड्यूसर में भी इनकी ये बदतर हालत है। मतलब उनके पाँव कहीं नहीं है, अगर पाँव है वो है भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को। तो इस अलायंस में एक जो इनकी रहनुमा है महबूबा मुफ्ती जी, अब कितनी अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी वो गन को जस्टिफाई करती है और ये कहती है कि कश्मीर में यूथ को गन उठाना चाहिए। मेरे इल्तिजा है अगर उसको ये लगता है तो उसको चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, उसको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और हम आज लोगों से गुजारिश करते हैं आपको ये जवाब देना है, आपको लोगों को वोट के जरिए जवाब देकर। आज जो हमारे कैंडिडेट गुलजार साहब है ये पीडीपी के कैंडिडेट है, लेकिन ये हमारे अलायंस के कैंडिडेट, इसको डॉक्टर साहब ने मैंडेट दिया और हम इनके साथ है शाना बशाना। इंशाल्लाह ताला हम इसको जिताकर यही जवाब देंगे। मेरा जिम्मेदारी उन्होंने कंधों पे डाली है, मैं गरीबों के साथ साथ हूँ, मैं उनके साथ रहूंगा, जो उनका मसला मसाइल होगा वो इंशाल्लाह दूर करते रहूंगा। गांधरबल में डीडीसी इलेक्शन और पंचायती ज़िमनी चुनाव की तैयारियों के ज़िमन में डीसी गांधरबल ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। डीसी ने बैलेट पेपर प्रिंटिंग स्ट्रांग रूम और मैनेजमेंट रूम के मकामात का मुआयना किया और मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी की। गांधरबल के गुन इलाके से डीडीसी और पंचायती चुनाव के लिए मजमूई तौर पर 186 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं। के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है, लाहौर को हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह रहमान। हमारा नारा यही है, सबका साथ सबका विकास, और इसी चीज़ को लेके हम आगे लोगों के पास जा रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान उनका फ्यूचर अच्छा होगा, ताबनाक होगा, मेरा ये मानना है। पोलिंग के हवाले से हो, पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग के हवाले से हो, चाहे उनके रहने के हवाले से हो, पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने के हवाले से, उनमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जैसे आपका पावर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए, उस हवाले से जो है पोलिंग स्टेशन जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के वो बिल्कुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वादी में फॉरेस्ट एक्ट को आने वाले कुछ माह में लागू किया जा सकता है। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने इसका खैर मकदम किया है। पोसवाल ने त्राल में इन ख्यालात का इजहार किया। पोसवाल ने आरिफल और त्राल से डीडीसी के उम्मीदवार की हैसियत से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। अभी त्राल और आरिफल के रहने वाले लोगों को यकीन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर यासीन पोसवाल नाचीज इस मैदान में कामयाब आप लोगों ने किया तो जो मेरे तक होगा, मैं कहीं पे सड़कों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, स्कूलों के अपग्रेडेशन का मसला है, स्कूल बिल्डिंगों का मसला है, हेल्थ सेक्टर है, जितने भी लोगों के रोजमर्रा के मसाइल हैं, तो मैं इंशाल्लाह रहमान। बारामूला में नारवा हल्के से रजिया हसन ने गुपकार अलायंस के उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एनसी और दीगर पार्टियों के सीनियर लीडरान मौजूद थे। एनसी लीडर नीलूफर मसूद ने कहा कि फरकापरस्त ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए गुपकार अलायंस की तश्कील की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम किया है और डेमोग्राफी को गैर आइनी तौर पर तब्दील किया गया। उन्होंने लोगों को बेदार होने और अलायंस के उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। टाउन हॉल टंगमर्ग में डीडीसी इंतखाबात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अहमद शाह, पीडीपी के लीडर शब्बीर अहमद मीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर व साबिक एमएलए गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लीडरान ने हाजी मोहम्मद रज़ाक को कामयाब करने की अपील की। कांग्रेस की जानिब से डीडीसी इंतखाबात को लेकर एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में नाराबल के लिए कांग्रेस के डीडीसी उम्मीदवार परवेज
परवेज बिलाल मौजूद रहे। बेरवाह के इंचार्ज मोहम्मद अकबर मीर के अलावा कांग्रेस के कई लीडरों ने भी शिरकत की। लोगों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। किलर शोपियां में इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां जारी हैं। बीजेपी लीडरान ने कई इलाकों में जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की। पार्टी उम्मीदवार जावेद कादरी ने गुपकार अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी बारामूला के सदर मीर मुश्ताक नौशहरी का कहना है कि मुंतखब होने पर बोनियार हल्के के ज़ेर इल्तिमाम मसाइल हल करेंगे और नौजवानों की फौज और पुलिस में भर्ती कराएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वो वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जा सकती है। मीर मुश्ताक ने बोनियार हल्के से बीडीसी के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस ने डोरू के शाहबाद बाला ब्लॉक से नसीर अहमद मीर को उम्मीदवार बनाया। नसीर मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर के फर्जंद हैं। नसीर मीर ने आज शाहबाद ब्लॉक से अपना कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर उनके हमरा जी अमीर और पार्टी कारकुनों की एक खासी तादाद मौजूद थी। नसीर मीर ने इस मौके पर अपनी जीत का आज़म दोहराया। जिला अनंतनाग में डीडीसी इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस ने कोकरनाग के लोअर नो ब्लॉक में साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद की क़यादत में एक रोड शो का एहतमाम किया। इस दौरान कांग्रेस हामियों ने वहां के उम्मीदवार फरहाना अख्तर के हक में लोगों को वोट देने की अपील की। पीरजादा सैयद ने कहा कि कांग्रेस वाहिद ऐसी जमात है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की राहें हमवार हुई हैं। बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजीद मजबूत बनाने के लिए डीडीसी चुनाव कराए जा रहे हैं, ताहम पाकिस्तान इसमें खलल डालना चाहता है। अशोक कौल ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। अशोक कौल ने पुंछ में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। पुंछ के नंगली साहब साई बाबा ब्लॉक से गुपकार अलायंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर नाजिया गनी ने अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर नाजिया गनी ने कहा कि वो अपने इलाके के मसाइल को हल करवाने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। पुंछ के मंडी ब्लॉक से एनसी व गुपकार अलायंस के उम्मीदवार बेगम अतीका जान ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। एनसी यूथ विंग के सूबाई सदर एजाज जान ने कहा कि एनसी दफा 370 की बहाल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। डोडा में बीजेपी के साबिक एमएलए शक्तिराज परिहार ने मरमट ब्लॉक से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के इख्तियार संभालने के बाद से डोडा में तरक्याती प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। शोपियां में 34 राष्ट्रीय राइफल्स मंत्री बुक कैंप ने एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें लोगों को वोट की अहमियत से वाकिफ कराया गया और उन्हें अपने हक रायदही से इस्तेफादे की तरगीब दी गई। गुज़श्ता शाम जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में ग्रेनेड हमले के बाद आज पुलवामा में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। डीडीसी और पंचायती इंतखाबात के हवाले से काकापुरा समेत पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। काकापुरा के मेन चौक में पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई। श्रीनगर पुलवामा शाहराह पर आज फोर्सेस का गश्त भी बढ़ाया गया। इस बीच नगरोटा इनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर में कौमी शाहराह पर भी हाई अलर्ट किया गया। कौमी शाहराह पर फोर्सेस की इजाफी तैनाती रही। डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना ने पैरासाइक्लिंग एक्सपेडिशन इन्फेंट्री राइड 2020 को रवाना किया। निशात श्रीनगर में डल झील के किनारे जमा हुए पैरासाइकिलिस्ट को कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए रवाना किया गया। अपनी खिदमात अंजाम देने के दौरान किसी जिस्मानी अज़ू से महरूम होने वाले कई बीएसएफ जवान भी इसमें शामिल थे। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के हवाले से बेदारी पैदा करने की गर्ज से इसका इनकाद किया गया। इस मौके पर आदित्य फाउंडेशन और पैरासाइकिलिस्ट की हौसला अफजाई के लिए कई दीगर लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीजी बीएसएफ ने ड्यूटी अंजाम देने के दौरान माजूर हुए अफराद को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ऐसे बहादुर जवानों की बाज़ाबतकारी के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना भी इस दौड़ का एक अहम मकसद है। कश्मीर कन्याकुमारी की राइड का मेन मोटो है टू रीच मोर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्कूल, क्योंकि हर बच्चा जो है एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर सकता है। अगर जो वो अच्छा नहीं करता है तो उसकी एनर्जी हम लोगों को पैरा स्पोर्ट्स में ट्रांसफॉर्म करना था। एंड वी हैव एशियाज़ फर्स्ट पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन हैदराबाद। कई जवान हैं हमारे जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने अंगों का बलिदान किया है। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे और बीएसएफ की तरफ से नमन करता हूं। हमारे इस छोटे प्रयास से हौसला बढ़ता रहेगा और वो दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बने रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है इनके जो दुनिया को जागरूक करने के लिए कि हम दिव्यांग भी ऐसे को जो अपना इवेंट कर सकते हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट रॉक।
2010 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से। अपना पैशन अपनी साइकिलिंग में डेडिकेट किया एंड डेली 50 to 100 किलोमीटर साइकिलिंग कर। LHDC लेह के चेयरमैन और CEC एडवोकेट ताशी गिल्सन ने सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लेह का मुआयना किया। अगले 18 माह तक इस प्लांट को 3R मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड चलाने का, बाद में इससे MC लेह के सुपुर्द किया जाएगा। CEC ने इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने मजीद स्टाफ तैनात करने पर जोर दिया। उन्होंने इस प्लांट को एक नमूना बनाने की तलकीन की। इस मौके पर उनके हमरा कई दीगर ओहदेदार मौजूद रहे। ज़ंस्कार सब डिवीजन में सयाहों को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक ताशी ने एक मीटिंग मुनक्किद की। सरकारी ओहदेदारों के अलावा सियाहती शोबे से जुड़े नुमाइंदों ने शिरकत की। सयाहों को सहूलियात की फराहमी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने बताया कि ज़ंस्कार के सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए UT इंतज़ामिया ने 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। LHDC करगिल के चेयरमैन व CEC फिरोज अहमद खान का कहना है कि फोटोग्राफी सयाहत के फ़रोग़ में मार्केटिंग का मौसर ज़रिया है। खान ने करगिल में फोटोग्राफी पर मुनक़्क़दा 3 रोज़ वर्कशॉप के इख्तितामी तकरीब के दौरान ये बात कही। लद्दाख UT के महकमे सयाहत और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी और आर्ट फॉर काज के इश्तराक से ये वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया। खान ने आइंदा भी इस तरह के सेमिनार मुनक़्क़िद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वर्कशॉप के ट्रेनर्स कामयाब उम्मीदवारों और शुरका में असनाद तकसीम किए गए। ज़ंस्कार सब डिवीजन में सयाहों को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसुक ताशी ने एक मीटिंग मुनक्किद की। सरकारी अहदेदारों के अलावा सयाहती शोबे से जुड़े नुमाइंदों ने शिरकत की। सयाहों को सहूलियात की फराहमी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने बताया कि ज़ंस्कार की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए UT इंतज़ामिया ने 80 लाख रुपए मंजूर किए हैं। कश्मीर न्यूज़ में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कोरोना से जुड़ी खबरें और ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स से जुड़ी खबरें होंगी।